Hello children, let us continue with the next topic of evolution, that is adaptive radiation. Adaptive radiation is an evolutionary process in which an ancestral stock gives rise to new species in a given geographical area. Means one species, it forms many new species in one area. So, this gives rise to new species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other geographical areas or habitats. So, we will discuss few examples of adaptive radiation. One, that is the Darwin Finches. Darwin finches, what are these finches? They are small black birds. These were observed by Darwin in Galapagos Islands. So, जब वो सी जर्नी कर रहा था तो उसको बहुत सारे ऐसे स्मॉल ब्लैक बर्ड्स दिखाई दिए. तो there were many varieties in the same island. He reasoned that after originating from a common ancestral seed-eating stock, the finches must have radiated to different geographical areas and undergone adaptive changes as per their need. And these changes were especially in the beaks. Living in isolation for the new kinds of finches emerged that could function and survive in a new habitat. So, उसने ये देखा था कि उसने फिर ये सपोज किया कि ये जो फिंचेस थे वो एक कॉमन एंसेस्टर जो कि थी सीड ईटिंग, वहाँ से सारे एराइज हुए और फिर थोड़ी थोड़ी सब में अडेप्टेशन हुई, थोड़ी थोड़ी सब में चेंजेस हुई, and these changes were in the beak, and then they have migrated to other geographical areas, radiated to other different areas. Now here you see the example. This is a large ground finch seed eating. Then cactus ground finch, cactus fruits and flower eating. Then vegetarian bird eating, woodpecker finch, that is the insect eating. Here you see small difference in their beaks. कहीं पे ये short हो गई और slightly curved, और यहाँ पे जो insect eating है तो थोड़ा long है and comparatively thin cylinder. So here you see the difference in all the four, and all these originated from the single original seed eating finch. So that is the example, Darwin's finches of adaptive radiation. Another example is Australian marsupials. A number of marsupials क्या होते हैं? Pouched mammals. They're different from the other. They evolved from an ancestral stock within Australia. So, Australian marsupial. Here in your textbook also it is given that in this case you see that in the Australian marsupial there are from the common ancestral stock, that is the marsupial radiation. यहाँ पे बहुत सारे और marsupial निकले, Tasmanian wolf, tiger cat, banded anteater, marsupial rat, kangaroo, and there are bandicoot, koala, marsupial mole, glider, etc. So सिर्फ एक original ancestor से बहुत सारे जो वो marsupials, they are different from each other. They evolved from the same ancestral stock. और ये कहाँ हुआ? But within the same island, Australian island continent. So this is another example of adaptive radiation. And तो अब हम next क्या देखेंगे कि sometimes more than one adaptive radiation
They occur in an isolated geographical area with different habitats. Then it can be called as convergent evolution. Here we see the example. ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल का हमने किया कि डिफरेंट मार्सूपियल क्या जो है अराइज हुए थे, मार्सूपियल मोल, बैंडेड एंट हीटर, माउस, देन तस्मानियन वुल्फ, ये सारे हमने अभी इसमें बुक में आपके इसमें देखे कि डिफरेंट मार्सूपियल्स दे इवॉल्व, टाइगर, कैट एंड बैंडेड एंट ईटर, ये सारे इवॉल्व हुए फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर. सिमिलरली एक प्लेसेंटल जो मैमल, मार्सूपियल और प्लेसेंटल दोनों में फर्क है, दोनों ही क्या है, मैमल्स है, लेकिन मार्सूपियल में पाउच होता है जिसमें बेबी को रखते हैं वो और प्लेसेंटल मैमल में वो फीड करते हैं फीटस को थ्रू द प्लेसेंटा. तो placental mammal of Australia, they show parallel evolution as they have evolved from other marsupial mammals, each of which closely resembles and looks similar to corresponding marsupial. इसका डायग्राम मैं भी नेक्स्ट आपको ये दिखाऊंगी. So here you see Australian marsupial और placental mammal. यहाँ पे marsupial mole, उधर placental mole, banded एंट ईटर और वहाँ पे प्लेसेंटल एंट ईटर, मार्सूपियल माउस एंड देन प्लेसेंटल माउस. तो सिमिलर पैरेलल एवोल्यूशन. तो जब एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन, ये एक अडेप्टिव रेडिएशन हुई, ये दूसरी अडेप्टिव रेडिएशन हुई इन द सेम एरिया, देन वी से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन. हियर यू सी विद द डायग्राम. So they quite resemble each other. They are resembling each other. Placental mammals, placental mole और यहाँ पे एक मार्सूपियल मोल है. देन एन एंट ईटर देखो, एक तरफ प्लेसेंटल और दूसरी तरफ मार्सूपियल, और जो अभी हमने किया था बेंडेड एंड ईटर. सिमिलरली माउस, प्लेसेंटल माउस, मार्सूपियल माउस, लीमर, स्पॉटेड कस्कस. तो एक तरफ इसकी अडेप्टिव रेडिएशन अलग से हुई, इसकी अलग से हुई, बट दे वर पैरेलल एवोल्यूशन एंड दिस इज नोन एज convergent evolution. And so when more than one adaptive radiations that occur simultaneously, so this is what is called a convergent, और इसमें same area में simultaneously in an isolated geographical area may have different habitat, then it is called convergent evolutions. So this is about the adaptive radiation. Then this is not given much in your book, तो hurriedly हम इसको देखते हैं कि ये लेमार्क्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बट ये थोड़ी सी अदरवाइज ये भी एक इम्पॉर्टेंट उस टाइम थ्योरी दी थी एंड इट वाज accepted at that time कि according to Lamarck, evolution of life form had occurred by the use and disuse of the organs. Means the organs that we use more, they are more developed, and the organ which are not used and they become vestigial in the long run. तो उसने एविडेंस दिए कि हमारी इवन इन अवर बॉडी देयर आर सो मेनी वेस्टिजियल ऑर्गन जिनका कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है आज हमें, बट दे वर फंक्शनल in our ancestor or in the past. Then he also gave the example of long neck of giraffe. According to him, it is an outcome of the attempt to stretch their neck continuously to eat leaves from the tall trees. तो ये tall trees की leaves खाने के लिए उन्होंने continuously अपने neck को stretch किया. तो this character was acquired during the lifetime, and this acquired character is inherited to the next generation. तो ये देखो ओरिजिनल शॉर्ट नेक्ड एंसेस्टर, फिर दे कीप स्ट्रेचिंग नेक टू रीच लीव्स हायर अप ऑन द ट्री, and then more and more stretching or long neck of the giraffe. But now this theory it's not much accepted. It was rejected by the experiment performed by Weizmann. So
देखा गया कि कोई भी एक्वायर्ड करेक्टर जो है दैट इज नॉट इनहेरिटेड सिर्फ वही करेक्टर होते हैं इन विच देयर आर चेंजेस इन द डीएनए। ठीक है, अगर एक्सीडेंटली हमारी कोई लिम्ब जो है डैमेज हो जाती है या हाथ या पैर कट जाता है, बट आवर नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, दे वुड नॉट बी विदाउट लिम्स, या उनमें डैमेज्ड हाथ या पैर नहीं होगा। So acquired character, acquired during a lifetime, is not inherited जब तक कि changes जो हैं that occurs in the DNA। तो इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे विजमैन ने कि उसने माउस की टेल काट दी थी, तो उसने देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में माउस की टेल इट वॉज ऑफ ओरिजिनल लेंथ, वो कोई कटी हुई टेल या शॉर्ट टेल नहीं थी। तो इस तरह से उसने सक्सेसिव जनरेशन में कितनी जनरेशन तक ये एक्सपेरिमेंट किया, एंड इन ईच जनरेशन ही फाउंड द टेल ऑफ द सेम लेंथ। देन ही रिजेक्टेड दिस थ्योरी दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट एट ऑल इनहेरिटेड। तो मेन थ्योरी जो हम एक्सेप्ट करते हैं दैट इज द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। But Hugo de Verrais, he also proposed another theory of evolution, mutation theory. तो एक हमने की Darwin theory of natural selection, then Lamarck's theory, use and disuse of organs, and then this mutation theory. तो म्यूटेशन थ्योरी उसने ह्यूगो डी वेराइस ने कहा कि व्हाट इज म्यूटेशन, दे आर लार्ज हेरिटेबल चेंज अकर सडनली इन द कैरेक्टरिस्टिक्स of a population. So large changes in the population, they are the mutations. So according to him, mutation caused speciation. Mutation से new species arise होती है, speciation means origin of new species, and called it as saltation. Single step large mutation. He differed from इसमें म्यूटेशन और डार्विन में क्या कंपैरिजन था, दोनों में क्या डिफरेंस था, दोनों ही क्या थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, बोथ लीड टू स्पेसिएशन, बट डिफरेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू डी वेराइस द म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, वो एकदम से सडन चेंजेस इन डीएनए, वाइल डार्विन की जो वेरिएशन है, चलो डी वेराइस की म्यूटेशन भी चेंजेस हैं, वेरिएशन भी चेंजेस हैं, तो लेकिन वो चेंजेस जो हैं म्यूटेशनल चेंजेस हैं, दे आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, एंड डार्विन इनकी जो चेंजेस है दैट इज अ वेरिएशन, दे आर स्मॉल, थोड़ी थोड़ी होती हैं, एंड दे आर डायरेक्शनल टूवर्ड्स adaptability, वो एक डायरेक्शनल होती हैं, दे आर नॉट डायरेक्शनलेस। डी वेराइस बिलीव्ड दैट सच लार्ज सिंगल स्टेप म्यूटेशन caused speciation, but evolution for Darwin's is gradual and occurs over a number of years. तो अकॉर्डिंग टू डी वेराइस जो स्पीसिएशन होती है, नई स्पीसीज एकदम से हो जाती है, म्यूटेशन कॉज स्पीसिएशन, इसलिए उसको साल्टेशन भी कहा। लेकिन डार्विन के हिसाब से जो एवोल्यूशन है वो धीरे धीरे होती है, ग्रेजुअल, वेरी ग्रेजुअल, इट इज नॉट सडन, एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके ये न्यू स्पीसीज अराइज होती है और एवोल्यूशन जो है वो होती है। Next, we are going to discuss a very important topic of this chapter, Hardy-Weinberg principle. This principle states that under certain conditions of stability, the allele frequencies of a population are stable and remain constant from generation to generation in sexually reproducing organisms. This stability is called genetic equilibrium और Hardy-Weinberg principle. तो इसको आप इसको समझो, पहला तो ये प्रिंसिपल कहाँ पे लागू हो रहा है, पॉपुलेशन में, ठीक है। एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पॉपुलेशन आर स्टेबल, फ्रीक्वेंसीज मतलब एक एलील 60% है, दूसरा 40% है, तो दीज फ्रीक्वेंसीज दे आर स्टेबल एंड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म।
या फिर हम इसको दूसरी भाषा में कैसे कह सकते हैं, सम टोटल ऑफ ऑल एलीलिक फ्रीक्वेंसीज इन इज 1। सब एलीलिक फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो है वो 1 है। एंड अगर हम सपोज करें कि दो एलील्स हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, जैसे हमने बहुत सारे क्रॉस किए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस तरह मतलब वो दो फ्रीक्वेंसीज थी ना, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। इसी तरह अगर हम सपोज करें देयर आर 2 एलील्स, कैपिटल ए स्मॉल ए, सपोज frequencies of allele capital A is P, frequency of allele small a is Q। तो दोनों फ्रीक्वेंसीज का टोटल P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने ऐसे स्क्वायर को ले रहे हैं बिकॉज हम देखते हैं कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअल कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ए, जैसे हमने किया था टी स्मॉल टी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। तो इसी तरह इफ इट इज कैपिटल ए, इट्स फ्रीक्वेंसी इज पी स्क्वायर। इफ इट इज स्मॉल ए, फ्रीक्वेंसी इज क्यू स्क्वायर। एंड इफ इट इज कैपिटल ए स्मॉल ए, देन इट इज 2PQ। तो इस तरह से P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज ऑलवेज 1, यानी कि ए और अगर मैं आपने उसमें किया, टॉलनेस में किया, टॉल हैं या ड्वार्फ हैं या हाइब्रिड टॉल हैं, तो सब मिल के उनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं दैट इज 1। यानी कि अगर एक बढ़ता है दूसरा कम हो जाता है, दूसरा बढ़ता है तो पहला कम हो जाता है। P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर ये कुछ चेंज होता है, 1 से चेंज होता है, फ्रीक्वेंसीज चेंज होती है, डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, देन वी से देयर अकर्ड एवोल्यूशन। तो अगर इस इक्वेशन में कुछ भी चेंज होता है, देन वी सपोज देन देयर इज एवोल्यूशन, और डिस्टर्बेंस इन दिस इक्विलिब्रियम is due to evolution. What are the factors which are responsible for the evolution and or for the Hardy-Weinberg equilibrium के उसके लिए जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 फैक्टर्स हैं। तो पहला जीन माइग्रेशन। If some individuals of a population migrate to other population, or when certain individual come into a population, कोई मेंबर बाहर दूसरी पॉपुलेशन में चले जाते हैं या दूसरी पॉपुलेशन के कोई मेंबर उसमें आ जाते हैं, जीन फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गिवन पॉपुलेशन चेंज, सम जीन्स आर लॉस्ट, सम जीन्स आर एडेड। तो इसको जो है कहते हैं हम जीन माइग्रेशन। अगर जीन माइग्रेशन बार बार होती है, मल्टीपल टाइम्स, देन वी से जीन फ्लो occurs. So gene flow is responsible for disturbance of equilibrium, or it is responsible for evolution. Second is genetic drift. Genetic drift क्या है कि अगर ये जो है माइग्रेशन, रैंडम चेंजेस इन द एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ ए पॉपुलेशन occur by chance or accidentally, then it is called genetic drift. तो random changes in the allele frequencies is by chance or accidentally, that is known as genetic ड्रिफ्ट। यानी कि ऊपर वाला जो जीन फ्लो हमने किया, अगर जीन फ्लो जो होता है या जीन माइग्रेशन जो होती है वही बाय चांस होती है, तो हम इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो
this is the genetic drift, and change in the allele frequencies may become so drastically different that they form new species. Original drifted population becomes the founder, and the change in the phenotype and genotype of the progeny constitute the founder effect. Then mutation जो हमने किया, they are random and occur suddenly, and that lead to the speciation. Then recombination that occur due to the crossing over during the meiosis, जो हमने शुरू वाले फर्स्ट चैप्टर में किया था, तो उससे भी नई स्पीसीज ओरिजिनेट होती है. नेचुरल सिलेक्शन जो हमने डिटेल में किया है, इट इज अ नेचर दैट सेलेक्ट सुटेबल बेटर वेरिएशंस एंड जो लेस अडेप्टेड वेरिएशंस होती हैं वो लेस selected, they are not selected. So in this way these natural selection also help in the evolution. So natural selection process, it depends upon the traits favored and produce one of the three following effects. तो ये हम natural selection का सिर्फ कर रहे हैं कि ये जो है three effects show करती है. So here you see, suppose अगर हम इस ग्राफ को देखें तो number of phenotype individuals, number of individuals with a phenotype, suppose हम size की ही बात करते हैं, तो ये जो है मीडियम साइज्ड इंडिविजुअल्स दे आर फेवर्ड. तो देखो जो ये इस तरह से इस साइड पे ये साइज है और इस तरह नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है. तो अगर हम देखें छोटे साइज के इंडिविजुअल बिल्कुल कम फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे थोड़ा साइज बड़ा हो जाता है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है. तो मीडियम साइज इंडिविजुअल दे आर मोस्ट फेवर्ड. जैसे साइज और बड़ा हो गया फिर उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती गई और लार्ज साइज के भी फेवर नहीं हो रहे. मीडियम साइज के इंडिविजुअल्स दे आर फेवर. अब जब इसमें चेंजेस हो रही हैं तो जैसे या तो स्टेबलाइजेशन इंडिविजुअल क्योंकि मीडियम साइज के फेवर हो रहे हैं, दे ऑल द इंडिविजुअल दे एक्वायर मीन करेक्टर वैल्यू. ये वाली वेरिएशन कम होती आ रही है छोटे और बड़े साइज वाली, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो इसको ले रहे. पीक जो है इट गेट्स हायर एंड नैरोअर, यानी कि ये वेरिएशन सेलेक्ट होती जा रही है. या फिर डायरेक्शनल इन विच मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन वैल्यू. यहाँ पे क्या है, मीन वैल्यू से हट के बड़े साइज वाले इंडिविजुअल थोड़े ज़्यादा सेलेक्ट होते जा रहे हैं. इसी तरह ये ग्राफ इस तरफ भी शिफ्ट हो सकता है कि छोटे साइज वाले ज़्यादा सेलेक्ट हो. दैट इज द डायरेक्शनल, मीन्स individuals they acquire a value other than the mean value, either small or large. And the third is disruptive, in which more individual acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve, या तो small या फिर large. Mean value वाले individual they are not favored. So in this way different effects can occur with a natural selection.